اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور ہم دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری جو خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس قوم کے بتا رہے ہیں وہ تمام کی تمام خوبیاں مسلمانوں میں ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کفار کو اور اہل کتاب کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اور اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اس وجہ سے کہ جو دوست ہوتے ہیں، دلی دوست کی بات ہو رہی تھی نا، کہ دلی دوست جو ہوتا ہے اس کے دین پہ ہی دوست ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دین کو نقصان دے دیں گے، تو اس وجہ سے ان سے دلی دوستیاں نہ کرو۔ اب آج کی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاعر اللہ کی ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اذان کی آواز سن کے وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، اتخذوها، تو وہ بنا لیتے ہیں ہزواً ولعبا، مذاق اور کھیل بنا دیتے ہیں۔ اس کا ایک تو شان نزول ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اذان جو ہے یہ سب سے پہلے کب دی گئی تھی، تو اس کے بارے میں اس کی جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، میں اتنا لمبا تو اس میں نہیں ذکر کر سکیں گے، لیکن تھوڑی سی اس کی میں ڈیٹیل بتا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت تک تو اذان نہیں ہوتی تھی نا، کیونکہ اذان نماز بھی صبح کی اور شام کی نماز ہوتی تھی، اور دو دو فرض ہوتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو اس کے بعد تو نماز کا تحفہ ملا تھا کہ 5 نمازیں پڑھنے کا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو وہ ساری ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے وہاں پہ کیا ہوا تھا، ایک مسجد تعمیر کی۔ اب مسجد جب بنی تھی تو پھر یہ کویسچن ہوا کہ اب لوگوں کو کیسے بلائیں، کیونکہ مکہ میں جب بلاتے تھے تو وہ ایک کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، کہ نماز قائم جمع ہونے والی ہے، تو اس طرح سے صحابہ جمع ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ کیونکہ زیادہ لوگ تھے، بڑی جگہ تھی، تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے جب وقت ہوگا 5 وقت کی نماز کا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھنڈا گاڑ دیں گے، تو اونچی جگہ پہ، تو جو دیکھے گا وہ ایک دوسرے کو بتائے گا، تو اس طرح سے نماز کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ناقوس کی آواز جیسے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو کرسچنز کیونکہ کرتے ہیں تو ہم ان کی نقل نہیں کرنا چاہتے۔ اور کچھ نے کہا نسینگا کی آواز جیسے ہوتی ہے، تو وہ ہم جیسے ایک بڑا سا لوہے کا ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر لکڑی کے ساتھ تھوڑا مارتے ہیں نا، تو اس کی آواز جیسے گونجتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے بھی کبھی اسکول میں جب ہم پہلے کافی دیر پہلے کی بات ہے، اس وقت اس طرح سے آواز آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک بیل ہوتی ہے یا 2 بیل ہوتی ہیں، اس طرح کی آواز جو تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہود ایسے کرتے ہیں، تو ہم ان کی بھی نقل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ناقوس لے کے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے اس کو خواب میں نے اس کو پوچھا کہ کیا تم اس کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم اسے نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ جو اذان کے لفظ ہیں اور انہوں نے اپنی خواب میں دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر پوری نماز کے جو اذان کے الفاظ تھے وہ ان کو سکھائے۔ اب صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر سے پہلے، تو انہوں نے جا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے کسی نے اس طرح سے خواب کے میں اذان کے الفاظ بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچی خواب دیکھی ہے، اب تم یوں کرو کہ بلال کو اپنے ساتھ لے کے جو حضرت بلال کو، تو جا کے، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی اور ان کی آواز سریلی بھی بہت تھی، کہ تم اس کو لے کے جاؤ اور تم جو الفاظ ہیں تم اس کو القاء کرتے جو بتاتے جاؤ، اور بلال جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ آواز جو ہے گونجتی ہے فضا میں، حضرت عمر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک چادر لے کے، چادر گھسیٹتے ہوئے مدینہ کی مسجد کی طرف آتے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچ سنا۔ اور اس طرح سے پہلی دفعہ مدینہ میں اذان حضرت بلال نے دی تھی، اور ان کو خواب میں کس کو نظر آیا تھا؟ کہ عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا تھا۔
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स 40 दिन, सिर्फ 40 दिन की बात है, कि जो शख्स 40 दिन तक अजान, फजर की अजान देता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि वो बिलाल, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी बड़ी सादत है। अब देखिए कि हमारे बेटे हैं, हमारे बाप, खामन, जो भी कजन्स, आप अपने अराउंड देखिए कि कौन, कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अजान देने वाले हैं, और अगर देते हैं तो बड़ी सादत की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 शख्स को क़यामत के दिन किसी किस्म की घबराहट और खौफ नहीं होगा, और वो मुश्क के टीलों पर फिर रहे होंगे, आराम से टहल रहे होंगे उस वक़्त जिस वक़्त वो आलिम होगा कि हिसाब किताब की वजह से इंसान थर थर कांप रहा होगा, और वो दिन जो है वो 40,000 और कितने कितने दिन की बात होती है कि 50,000 साल जितना एक दिन होगा, और हर कोई खौफ के मारे अपने अमाल की वजह से डरा होगा, और जो मुअज्जिन है वो मुश्क के टीलों पर आराम से टहल रहे होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजान जो देने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला, क्या होगा कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें इतनी लंबी होंगी कि दूर से लोग उनको देख के पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। और क्यों होगा? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ नमाज के लिए पुकारने वाले लोग हैं। अजान की देखिए जवाब देना, अजान जब हम सुनते हैं तो उसका जवाब जब हम देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको लोगों को जन्नत की बिशारत है। और जो पूरी अजान ख़त्म होने के बाद जब वो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, ये पूरी दुआ जो पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन पे वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा खूबसूरत एक किस्सा भी बयान करती हूँ कि मलका ज़ुबैदा का, वो इसलिए कि अजान की क्योंकि बात हो रही है, तो उसकी जब हम ऐसी बात पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो फिर हमें भी शौक होता है, फिर हमारी हिम्मत होती है कि अच्छा हम भी ऐसा करें, देखो कैसे लोग किया करते थे। तो मलका ज़ुबैदा जो है, इनकी वफ़ात की जो डेट है वो है 216 हिजरी में। देखिए उस ज़माने में अभी कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो फर्स्ट हिजरी वहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो 216 हिजरी में इनकी वफ़ात भी हो चुकी थी। अब अक्सर कोई बात होती है ना तो हम लोग कहते हैं उस ज़माने की औरतें, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो ज़माना ऐसा था, आजकल तो औरतें इतनी आजकल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मलका ज़ुबैदा जो थी ना, ये कहते कि इतनी खूबसूरत थी और फैशन की बड़ी दिलदादा थी। इनको बड़ा शौक था, ये जो जूतियों के ऊपर स्टोन्स लगने का फैशन आया था, ये उनके ज़माने में आया था। इनको शौक था कि ये कीमती पत्थर जो होते हैं उससे वो अपने शूज़ को सजवाया करती थी। और जो घर में जैसे खुशबू वाली कैंडल्स जो है, ये भी उसी ज़माने में रवाज हुआ था कि ये खुशबू की कैंडल्स पूरे महल में अपने लगाया करती थी। और फिर इसके बाद देखिए कि कहते कि ऑलमोस्ट 250 के करीब हाफिज़ा होती थी जो इनके महल में, उनकी ड्यूटी होती थी सुबह शाम की, और वो सारा वक्त कुरान पाक की तलावत करती थी। और उनके ऐसे जैसे मक्खियों की बिनबनाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरह से सारा वक्त वो उनके महल से आवाज़ आया करती थी। इतनी नेक थी और इतने लोगों की इतनी खिदमत करने वाली थी। एक दफ़ा इन्होंने ये ख्याल इनको हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पैदल हज के लिए निकली। रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफान आते हैं, आंधियां, जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियां जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने उस जमाने में कहाँ से वो चली थी देखे, और मक्का तक उन्होंने पूरी हाईवे जैसे होता है कि बड़ी बड़ी दीवारें उस रास्ते के इर्द गिर्द बना दी ताकि रेत की वजह से वो रास्ते गुम ना हो। फिर जब वो मक्का पहुंची तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए मुश्किल से खरीदते और बहुत महंगा पानी मिलता है। उन्होंने वापस आके हुक्म दिया कि मक्का तक वहाँ तक एक नहर खोद दीजिए जिसको अभी नहर ज़ुबैदा कहते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोगों को जमा किया जो इंजीनियरिंग में थे, जो जिन्होंने भी ये काम करना था, वो पूरी टीम को इन्होंने बुलाया। अब वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप में से जो लोग मक्का मदीना गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी पथरीले वहाँ पे पहाड़ है और किस तरह से। उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे नहर खोदी जाएगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक मस्तूर, एक गुदाल मारने, मतलब एक ज़रब लगाने का अगर एक अशरफी भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, नहर खोदी जाएगी। और कहते हैं फिर वो इतनी मेहनत से, इतना लगन से ये काम हुआ कि वो फिर नहर खोदी गई। और जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो अपने महल में दरियाए दजला के किनारे पे बैठी हुई थी।
تو وہ آدمی جو پورا حساب کتاب رکھ رہا تھا، جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ حساب دینے کے لیے ان کے پاس آیا، تو آ کے جیسے اس نے دیا تو انہوں نے وہ سارا حساب بغیر دیکھے پانی میں بہا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا اجر میں اپنے رب سے جا کے لوں گی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا کسی کے اوپر ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے تو وہ مجھے بتاؤ، لیکن اگر کسی کا میری طرف آتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا جا کے اجر لے دوں گی۔ اسی لیے اسی زمانے سے یہ جو بات ہے نا کہ نیکی کا دریا میں ڈال، یہ اسی زمانے میں یہ ہوئی تھی۔ اب ان کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، تو انہوں نے اپنی کام والی جو خادمہ تھی اس کو کہا کہ کھانا لگاؤ۔ کہتے بھوک سے برا حال تھا، کسی کام میں مصروف تھی، تو جیسے کھانا دسترخوان لگا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، کہتے لقمہ توڑا اور جیسے منہ کے پاس لے جا رہی تھی تو اذان کی آواز آئی، اور جیسی اذان کی آواز آئی تو انہوں نے لقمہ نیچے رکھ دیا، اس عزت کی خاطر کہ یہ کس رب کی نماز کے لیے بلانے کے لیے آواز دی جا رہی ہے، اس شہنشاہ عالم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عزت کی خاطر انہوں نے لقمہ نیچے رکھ دیا اور پوری اذان سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ اچھا، یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے علاقے میں ایک کوئی ولی اللہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا تو دیکھا کہ یہ بڑی خوش پھر رہی ہیں ادھر، تو انہوں نے کہا کہ زبیدہ تم نے تو اتنے نیک نیک کام کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے لیے بخش دیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو سارے کام کیے تھے وہ تو میرے درجات کی بلندی کے مجھے اس کی وجہ سے ملی، لیکن میری بخشش جو ہوئی ہے وہ اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ اس دن جو میں نے اپنا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے نیچے رکھ دیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نماز کے لیے مجھے بلایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاضری ہوتی ہے نا کہ نماز کے لیے بلایا تھا، تو اس کی عزت کی خاطر میں نے اس پوری نماز کو سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے بخش دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں کہ اذان کی آواز پہ ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 58 میں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب پکارتے ہو تم إِلَى الصَّلَاةِ، طرف نماز کے، اتَّخَذُوهَا، تو وہ بنا لیتے ہیں اسے حُزُوًا وَلَعِبًا، مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ یہ ایسی لوگ ہیں، ایسی قوم ہے کہ جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا کہ حضرت ابو مخزورہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ابھی ینگ تھے، چھوٹے تھے، 14-15 سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، سے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین سے واپس آ رہے تھے نا جب، تو کہتے ہیں کہ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اذان دے، تو جب وہ اذان دینے لگے تو یہ بچے، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو یہ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو ان کی آواز جو تھی خوبصورت بڑی تھی اور اونچی آواز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک کو بھیجا کہ ذرا ان بچوں کو بلا کے لانا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ کس کی آواز تھی جو سب سے اونچی تھی؟ تو سارے بچوں نے کہتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں اس وقت میرا ڈر کے مارے یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور میں بچہ تھا، اور کہتے مجھے اسلام سے کوئی محبت بھی نہیں تھی، اور میں اس وقت مجھے سخت غصہ بھی آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو تو بھیج دیا اور ان کو کہا کہ ذرا اونچی آواز میں مجھے ایک دفعہ پھر سناؤ، اور ساتھ تعریف بھی کی کہ تمہاری تو آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بتاتے رہے، اذان کے لفظ بولتے رہے، اور یہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اشرفیاں جیسے چاندی کی ہیں تحفے میں دی، اور کہا کہ تمہاری تو آواز بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ یہ بھی دعا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے۔ تو ابو محسورہ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سا حال ہوا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تو میرے دل میں اسلام کے لیے جو غلط فہمی تھی یا کچھ تھا تو وہ سارا نکل گیا، اور مجھے اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیا کہ مجھے مکہ میں اذان مؤذن بنا دیں، اور پھر وہ وہاں پہ مؤذن رہے۔ کتنی بڑی سعادت ملی نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔
आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 59 सूरत अल-माइदा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, हल तन के मुना, कि नहीं तुम बैर रखते हमसे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर ये के अन आमना बिल्ला, कि हम अपने अल्लाह पर ईमान लाए। क्योंकि हैरत इसलिए कि तुम भी तो अल्लाह पे ईमान लाते हो, तुम अहले किताब हो, तुम्हें तो वही का भी पता है, तुम्हें रसूल का भी पता है, तुम्हें आखिरत का भी पता है, तुम तो इन चीज़ों पे ऑलरेडी ईमान ला चुके हो, तो हम पे क्यों हमसे बैर रखते हो? इसलिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, मतलब कुरान पाक ना, कि हम उस पर ईमान लाते। वमा उन्ज़िला मिन कब्ल, और जो कुछ नाजिल किया गया मिन कब्ल, इससे पहले। इससे पहले कौन सी किताबें थी? जो उनके तौरा थी, ज़बूर थी, और जो भी सहीफे थे, हम तो सब पर ईमान लाते हैं, तो तुम हमसे क्यों बैर रखते हो? वअन्न अक्सरकुम फासिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक का हमने पढ़ा ना, कितनी दफा ये वर्ड आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में कहा था कि फासिक कौन होते हैं? जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुले आम बुराइयां करते हैं, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते, और वो कहते हैं दिस इज आवर लाइफ, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता होगा ना, कि जो बुराई करते हैं वो क्या उनको होता है कि हाँ पीते हैं, सो व्हाट, हाँ शराब हमारे घर में है, सो व्हाट, हाँ हम हुक्का पीते हैं, जाके औरतें आदमी बैठे हुए पी रहे हैं, सो व्हाट। ऐसी चीजें जिससे फसाद क्रिएट होता है, वो अगर कर रहे हैं कि उनको देख के दूसरे भी वो अमल करना शुरू हो जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ये सोसाइटी में खून चूसते, मच्छर से एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि सोसाइटी का खून चूसते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हल उनब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नबा कहते हैं अहम खबर को, कि क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर्रि मिन ज़ालिक, के बदतर, के इससे भी बदतर, मिन ज़ालिक, इससे, मसूबतन, बदले के एतबार से, अंजाम के एतबार से, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, मन लाअनहुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह ने लानत की। कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो फासिक है ना, फासिक इतने बुरे हैं, लेकिन इससे भी बुरे कौन हैं? जिन पर अल्लाह ने लानत की। तो अल्लाह ने किस पे लानत की थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब पे लानत की थी ना, जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि कुरान में लानत का वर्ड कितनी दफा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में 31 टाइम, जो उसमें से कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ, कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग वाज़े दलील और हदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उन पर तमाम लानत करने वालों की लानत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पास क्या है? कुरान है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया, सब अहकामात हमें समझ आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो इन अहकामात को छुपाते हैं, बताते नहीं है, अगर किसी को बताना हो तो कहेंगे कि नहीं बस ऐसे थोड़ी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने माफ कर देना, अब इतनी छोटी छोटी बातों से थोड़ा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और कुफर पर ही मर गए, जैसे मुर्तद हो जाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और फिर देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर, हाय अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। देखिए कि भी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि झूठ भी है। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, जब जंगे ओहद में 300 सहाबा तो वापस 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आ गए थे, तो 300 का ईमान थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया कि हम भी वापस चले जाएं, डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हिम्मत दी और वो वापस जम गए थे। तो लेकिन सहाबा जो बाकी रह गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो मुसलमान है, तो ऐसे क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि हाँ मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और आज आप देखिए कि हम किस तरह से छोटी छोटी बात पे, एक और कुछ नहीं तो किसी का फोन आ जाए तो बच्चे को कह देते कि कह दो मामा घर पे नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप देख ले। आज आप जरा सोच के देखिएगा सारा दिन में कि जब हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं और
ज़रा लंबी बात हो जाती है, उसमें कितनी चीज़ें हम गीबत से लेके, चुगली से लेके, बहतान से लेके, झूठ से लेके, हम क्या क्या हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं सूरत आल इमरान में कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब देखिए सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो लोग जो अपने मुआहदे तोड़ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। मुआहदा कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप वादा लस याद कर लीजिए कि जो हमने अहद किया था, अहद है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहद है, और फिर उसके बाद निकाह अहद है। जो हम अहद करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम उसमें एक दूसरे के हकूक नहीं देते ना तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक नहीं देते तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, जो अहद तोड़ने, बाकी तो अहद आप देख लीजिए बाकी के सारे के, इंशाल्लाह मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, वादा तो कर लिया ना, और फिर किसने जाना है, ऐसे ही बस मैंने उसको कह दिया था टरखाने के लिए। कितने वर्ड्स हम ऐसे करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है। और फिर सूरत तौबा आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत है। मुनाफिक कौन होते? अल्लाह अकबर, जो मुंह से कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते और ना ही वो बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना मुनाफिक के बारे में, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन वो मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते, ना अल्लाह को धोखा से दे सकते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और सूरत अन-नूर की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर इस दुनिया और आखिरत में लानत है। अल्लाह अकबर। देखिए जब हम ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे लोग नहीं हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग ना हों। लेकिन आप देखिए कि जब हम कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो कितने आराम से एक दोस्त दूसरी दोस्त को सुना रही होती है, तुम्हें पता है, तुमने फलां बच्चे के बारे में सुना है, तुमने फलां औरत के बारे में सुना है, और हमें लगता है कि ये तो हम गपशप कर रहे थे या फिर हम दुख सुख कर रहे थे या तो हम ऐसी ही बात कर रहे थे। लेकिन देखिए अगर वो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रही है ना, अगर वो उसकी सच्ची भी बात है तो ये गीबत है, और अगर ये झूठी बात है तो ये तोहमत है। दोनों तरह से मारे जाएंगे। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी को उसके पीछे, जैसे वो इंसान वहां पे मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में कोई बात करें। और आगे देखिए सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। अब कैसे, हम लोग तो सोचते हैं ना कि अल्लाह को कैसे अजियत इंसान दे सकता है, लेकिन देखिए कि अल्लाह के हुक्म ना मानकर अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम लोग जो मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा गो है ना, हमने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद लिया है और हमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने पढ़ा है ना, तो तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम अपना माबूद बनाएंगे। हम तभी तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन देखिए कि अल्लाह को जब हम ये अहद कर लेते हैं तो फिर कौन से हुक्म है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हकूक और बंदे के हकूक। एक तरफ तो हम नमाज रोजा हज ज़कात की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बंदे के हकूक आ जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो जब हम तौबा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो इवन हम गुनाह कबीरा करते हैं, अल्लाह तो हमें माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान है, रहीम है, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन बंदों के हकूक का क्या होगा? अगर हम किसी इंसान के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर वही इंसान हमें माफ़ करेगा तो ही हमारी माफ़ी होगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। आप देखिए कि हम जब एक गुनाह तो दो तरह के होते हैं ना, एक सगीरा गुना, एक कबीरा गुना। सगीरा गुना तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब हम वुजू करते हैं तो हमारे धुल जाते हैं, नमाज एक नमाज से दूसरे नमाज, एक जुमा से दूसरे जुमा, इस तरह से जो हम करते हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान में जब हम पूरी तरह से इबादत करते हैं तो हमारे गुनाह जो है, जो छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है वो सवाए इसके कि हम तौबा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने करें, वो भी कितनी आसान है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ़ कर देते हैं। और एक और वजह हो सकती है कि जैसे हम हज के लिए जाते हैं तो हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये वादा है कि इंसान बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बच्चा होता है उसी तरह से वापस आता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
लेकिन आप ये देखिए कि वो गुनाह जो बंदों के हैं, जो आपने किसी इंसान के साथ ज्यादती की, किसी इंसान की चुगली लगा दी, किसी इंसान की गीबत कर ली, किसी पे बहतान लगा दिया, जिससे मैंने आपको अभी बताया, हम तो अनकॉन्शियसली ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन ये कितने बड़े गुनाह हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस दुनिया में भी और आखिरत में उस पर लानत है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वग़ादिबा अलैहि, और वो गजबनाक हुआ उस पर। और गजब किस पे हुआ था? हम पढ़ते हैं ना कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, जो अहले किताब थे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह अल-मुम्तहना में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों को दोस्त मत बनाओ जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। तो हमारी दोस्तियां आप देखें, हम कहाँ भाग भाग के जाते हैं। और दूसरा देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह ताहा में कहते हैं कि खाओ पियो उन चीज़ों को जो रिस्क हमने तुम्हें दिया, और इसमें हद से ना बढ़ो वरना मेरा गजब तुम पर टूट पड़ेगा। अब देखिए कि हलाल रिस्क की बात हो रही है ना, कि हमें कितना केयरफुल होना है कि हमारे जो मुंह में एक नवाला भी जाता है वो हलाल रिस्क का हो, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब का शिकार ना हो जाए। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअल मिनहुमुल किरदता वल खनाजीर, और बनाया, और उसने बनाया उनमें से बंदर और खंजीर। बंदर और खंजीर किसको बनाया था? आपको पता है? ये देखिए बंदर और खंजीर बनाने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली थी? एक हुक्म यहाँ पे नहीं माना था। आप जरा अपने आप को देखें कि हम कितने अहकामात आराम से गुजार देते हैं, हम पे तो अल्लाह का बड़ा करम है। अब देखिए कि अहले किताब जो थे, इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से मना किया था ना, तो मछलियों को थोड़ी कोई कांटे लग गए थे कि अल्लाह ने कहा कि इनको, या जहर उनके अंदर आ गया था कि अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त, जिस वक़्त वही आ रही थी, तो हलाल चीज़ों को भी हराम करके ये सिर्फ देखने के लिए कि मेरा बंदा समीना व अताना करता है कि नहीं करता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जब मना किया था तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते, वो जुम्मे के दिन में वो एक नेट लगा देते थे, संडे को निकाल लेते थे कि ठीक है जो मछलियां इसके अंदर आ जाती थी तो वो उनको उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लेते थे। अब क्या हुआ था कि उनमें 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह वो था जो उनको सख्ती से मना करता था कि देखो ये अल्लाह के अहकामात के खिलाफ है, अल्लाह का गजब आएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते हैं, ऐसा मत करो। उन्होंने उन लोगों को कहा कि ये तो हमारे पीछे पड़ गए। उनकी एक छोटी सी, जैसे होता है ना, एक दीवार सी बना दी थी उन लोगों के दरमियान में कि ये तो हमें बहुत तंग करते हैं। अब जो दूसरा गिरोह था वो था कि हम तो नहीं करते हैं। आप देखिए इनमें से आप ये वर्ड्स देखिए कि ऐसे नहीं लगता कि ये हमारे बारे में बात होती है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हमें क्या, हम थोड़ी उनके साथ मिलके कर रहे हैं। अगर वो कोई गुनाह का काम करते हैं तो वो अपना जवाब खुद देंगे। अब वो दूसरा गिरोह था, वो खुद नहीं कर रहा था लेकिन उनको भी मना नहीं कर रहा था। अब ये तीसरा गिरोह वो था जो ये कहता था कि हम थोड़ी गुनाह का काम कर रहे हैं, हम हफ्ते को नहीं पकड़े, हम तो जुमे को नेट लगा रहे हैं और फिर संडे को हम निकाल लेते हैं, तो हम भी गुनाह का काम नहीं करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो गिरोह जिनके दीवार बना दी थी ना, जो उनको मना करते थे और बुरे बन रहे थे, सवाए उनके बाकी इन दोनों गिरोहों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सजा के तौर पे बंदर और खंजीर बना दिया था। तो आज हम अपने अमल देखें जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम जब अहले किताब की बात पढ़ते हैं तो हम ये ना सोचे कि ये तो उनका मामला था ना, उनके साथ ऐसे हो रहा था, हम तो मुसलमान है, हमारे बारे में थोड़ी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार जो बात बताते हैं कि देखो तुम ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हारे बड़े लोगों ने की है। अगर उन्होंने किया था तो देखो उनको सजा क्या मिली थी, तुम भी ऐसी सजा में आ जाओगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व आबद तागूत, और जिसने बंदगी की तागूत की। अब देखिए तागूत कौन है? शैतान है ना। आज भी एक कौम ऐसी है जो एक्चुअली शैतान की पूजा करती है। अब देखिए शैतान ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इब्लीस को कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने इनकार किया था, तो उसने क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उनको बहकाऊंगा। अब तुम मुझे सिर्फ उतनी मोहलत दे दे जब तक ये दुनिया है, मैं तेरे बंदों को बहका के रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तूने जो करना है तू कर। देखिए हम कभी कहते हैं ना कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम क्या करें, कब से दुआ करें। शैतान की दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मोहलत दी कि ठीक है तुमने जब तक ये दुनिया है तू रह और तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम अपने रब का गुरूर हैं,
हमें बहुत सोच समझ के, मुसलमान जो है ना कलमा गो हैं, तो हमें सोच समझ के एक एक चीज़ बोलनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को आखिर में जाके हमने जवाब देना है इस चीज़ का। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं उलाइका, यही लोग हैं, शर्र मकानन, बदतरीन है दर्जे में, व अदल्लु अन सवा इस सबील, और वो ज़्यादा भटके हुए हैं सीधी राह से। अब देखिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे क्या फरमाया है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 61 सूरत अल माइदा, और जिसमें देखिए अब अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं व इदा जाउकुम, जब आते हैं तुम्हारे पास, कौलू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वक़द दखलू, और तहकीक के वो दाखिल हुए थे, बिल कुफ्र, कुफ्र के साथ। यहाँ पे नियत की बात हो रही है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जब वो आपकी महफिल में आते हैं, तो ये देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता चलता था ना, वो लोग आते थे आके कहते थे कि जी हम मुसलमान होना चाहते हैं, हमें इस्लाम से बड़ी रगबत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कहते हैं कि जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो इनकी नियतें ठीक नहीं होती हैं, ये जब आते हैं तो ये कुफर ही लेके आते हैं, वहुम कद खरजू, और वो यकीनन निकलते हैं, बिही साथ इसके, वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ज्यादा जानता है, बिमा कानू यक्तमून, कि जो वो छुपाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला तो दिलों के हाल जानता है ना। इनकी ये साजिश थी कि ये क्या करते थे कि इन्होंने आपस में ये अहद किया हुआ था, जैसे अपने आपस में ये बात करते थे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाएंगे और वहां जाके हम ये कहेंगे कि हम इस्लाम लाते हैं और हमें इस्लाम की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हम एक दो दिन के बाद फिर आराम से ये कह देंगे कि हमें तो इसमें कोई खैर नहीं नजर आई, तो हम उससे निकल जाएंगे। और जब हम मुर्तद होंगे तो वो जो नए लोग इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे हैं, वो लोग सोचेंगे कि ये तो अहले किताब हैं, ये तो इल्म वाले लोग हैं, अगर यही इनको इसमें खैर नहीं नजर आ रही तो फिर हम भी नहीं लाते। लोगों के दिल खराब करने के लिए और इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये एक साजिश करते थे जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खोल दी। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तो आते थे ना, और वो बात भी और मुनाफिक जो थे वो तो नमाज भी पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब देखिए कि उनकी जब नीयतें साफ ना हो तो कहीं भी खैर नहीं मिलती है। एक तरफ तो आप देखिए कि हजरत अबू बकर सद्दीक बन गए, हजरत उमर बन गए, हजरत उस्मान बन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ के, और एक तरफ यही लोग थे जो कुफर के साथ आए थे क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। हम कुरान में शुरू में पढ़ते हैं ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किन के लिए, मुत्तकियों के लिए। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं यही किताब है जो लोगों को मुत्तकी बनाती है और बहुत से लोगों को इस सरकशी में भी ज्यादा कर देती। सरकशी में कैसे ज्यादा करती है? आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला का फैज, अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल, वो तो जारी और सारी है ना। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत कितनी ले सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एक माँ की मोहब्बत की, कि माँ की मोहब्बत जारी और सारी है। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि कौन बच्चा माँ के ज्यादा क्लोज होता है और कौन नहीं होता। इसी तरह से कुरान पे जो हदायत है वो जारी और सारी है। इट ऑल डिपेंड कि आप किस नीयत से कुरान खोल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप कितना लेना चाहते हैं, कितना हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ये मिलेगा उसको। और यहाँ पे जो इनकी नीयत की बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी नीयत ही ठीक नहीं थी, वो आते ही इस नियत से थे। और आगे आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वतरा कसीरम मिनहुम, और आप देखेंगे कसीर तादाद को, मिनहुम उनमें से, युसारिऊन फिल इस्म, कि वो गुनाहों में दौड़ते हैं आगे। गुनाह क्या होते? देखिए हर वो बात जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो वो इस्म है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो गुनाह है सगीरा होते हैं, कबीरा होते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों का दिल तोड़ना। कोई भी आप लेवल पे आप देख ले कि एक अल्लाह सुब्हाना ताला के हकूक है और एक बंदे के हकूक है। जो ऐसे बात, जो ऐसा हुक्म जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बंदे को दिया है, हम वो नहीं मानते, हम वो नहीं करते, वो इसके अंदर आ जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वल उद्वान, और ज्यादती में। ज्यादती क्या करते थे? देखिए उद्वान कब करता है? जब बंदा जालिम हो जाता है ना, तो तभी तो वो उद्वान में आ जाता है कि बंदे में इतनी अना आ जाती है कि मुझे ऐसे कहा, और वो दूसरों के साथ ज्यादती करता है। और गुस्सा ही तो सबसे ऐसी बात होती है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं। हमारी ये जुबान जो है ना, ये हमें कहते हैं कि अगर ये कंट्रोल कर लो तो फिर दीन पूरे का पूरा आपके अंदर आ जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मुझे बात करते करते याद आया कि एक दफा बैठे हुए थे सहाबा के दरमियान में, तो जोर से अपनी जुबान जो है ना, जो अपने दांतों में दबा रहे थे।
तो सहाबा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसी का तो सारा फितना होता है, ये मेरे काबू में आ गई तो सारा वजूद मेरे काबू में आ जाएगा, सारा नफ्स मेरे काबू में आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम ज्यादती करते हैं ना किसी पे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना गजब है उस इंसान पे जो किसी इंसान पे ज्यादती करता है। इसी पे मुझे एक बहुत खूबसूरत एक किस्सा याद आया कि मैं पढ़ी थी हजरत अली हजवेरी के बारे में, गुस्सा कैसे कंट्रोल करने के बारे में था ना, कि एक दफा ऐसे ही वो उनके जो मुर्शिद थे उन्होंने उनको कहा कि तुम जाओ लाहौर की तरफ जाओ, और वो जब सफर के लिए निकले, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी लेकिन मैं आपको छोटा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो मैं आपको छोटी स्टोरी करके बता रही हूँ कि वो निकलते हैं, रास्ते में वो मुसाफिर खाने में ठहरते हैं, वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग मुसाफिर खाने में थे। तो कहते कि मैं, क्योंकि सफर था और सफर से हालत बुरी होती है, जैसे कपड़े भी उनके इस तरह की हालत में थे, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई फकीर है, कोई गरीब सा आदमी है, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि कहते हैं कि भूख से भी मेरा बुरा हाल था, तो उन्होंने सूखी रोटी जैसे होती है ना, वो उनके आगे रख दी, और खुद कहते हैं कि ऊपर चबूतरे पे जाके खाना खाने लगे, और खाने की खुशबू कहते हैं मुसलसल मुझे आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं मैंने सब्र शुक्र करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का, वो मैंने रोटी खा ली। और खाना खाने के बाद जब उन्होंने फल खाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो फल पील करते जाते थे और उसका जो छिलका था वो उनके ऊपर फेंकते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। जैसे आप सोचे कि कभी बेवकूफ़ी में कभी ऐसे होता है कि बच्चे जमा होते हैं तो किसी को तंग कर रहे होते हैं, उसी तरह की बिल्कुल बात कि वो छिलके एक इनके ऊपर फेंकते थे और खुद ही आपस में मजाक उड़ा रहे, हंस रहे थे। तो कहते हैं मुझे शुरू में आई वाज फीलिंग सो पेन कि इतनी इंसल्ट फील होती है ना बंदे को जैसे। कहते फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, तेरे ही तो बंदे हैं, अगर थोड़ी देर मेरे ऊपर छिलके फेंक के इनको कोई खुशी मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कहते मैं सो गया और ख्वाब में कहते हैं फिर मैंने ये देखा कि मेरी कुछ मंजिलें रुकी हुई थी काफ़ी देर से, जिसके लिए मैं बहुत इबादत भी कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं भी मांग रहा था, और मेरी वो मंजिलें रुकी हुई थी। उस रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी सारी मंजिलें खोल दी। सुभान अल्लाह। देखिए गुस्से को उस वक्त, कई दफ़ा होता है ना इंसान ये सोचता है कि जब उसको गुस्सा आता है पहले तो सारा गुस्सा निकालिए, अच्छा तुमने ये किया, मैं ये करूंगी, तुमने ये कर दिया, मैंने अब आगे से तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे गुस्से से जवाब दे दिया, और फिर बाद में क्या, अच्छा चलो जी मैं अब सब्र करती हूँ। ये सब्र नहीं होता। सब्र किस वक्त है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है ना, उस वक्त सब्र